Economics. Now factors affecting price elasticity of demand. So that is in your syllabus, how factors affecting price elasticity of demand in this. So where the price elasticity of demand regarding every factor, you have to just consider whether it is having the inelastic demand or elastic demand. When you are talking about inelastic demand, that means you want to say less than unitary elastic. And then you can say that is less than 1, because less than unitary elastic means less than 1. Here the elasticity of demand will be less than 1. Fine. So here it is less than 1. Like this you can write. Inelastic you can write. ठीक है. उसके बाद so here the next thing is elastic demand. If you are talking about elastic demand, that means you want to say it is more than unitary elastic. Elastic means more than unitary elastic. That means elasticity of demand is greater than 1. So that is elastic demand. So when you are talking about inelastic, that is it is less than 1. When you are talking about elastic, that is more than 1. So there is a difference between perfectly inelastic and inelastic. It is inelastic, not perfectly inelastic. Perfectly inelastic and perfectly elastic, they are not the common situation. You cannot find in the normal life. So but you can find out elastic and inelastic over there. And the fifth one is the unitary elastic. Unitary elastic is very difficult to find out because percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price. What do you say regarding unitary elastic? This is also one of the degree. That means elasticity of demand is equal to 1. Now we are talking about unitary elastic, that is elasticity of demand is equal to 1. Elasticity of demand is equal to 1 means percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price. This is also very impractical that you can find equally change in demand due to equally change in price. So that is also very difficult to find. And this, now another is perfectly elastic, where you will find the elasticity of demand is equal to infinity, and perfectly inelastic, where you find the demand elasticity of demand is equal to 0. So they both are the situation. These all three are the situation which is difficult to find, but here elastic and elastic, that can be easily seen in the normal life. Now first of all we are talking about the elasticity of demand. These are the factors affecting elasticity of demand. First of all, there is a nature of commodity. So what is the nature of commodity? So like the nature of the commodity is of like necessity type, or the nature of commodity is comfort type or luxury type. So there are three nature of commodity. We are talking about the necessity, that means food grain, salt, medicine, these are all the necessity type of goods. So this is the nature of commodity. So what is the price elasticity of demand in this case? So here demand does not change with the change in price in this case. So here demand is not at all change with the change in price. In this case, not fluctuate much with the change in price. So that is the necessity type of goods where the elasticity of demand is, you can say, inelastic, because the demand does not you can say response to change in price. अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी उसकी वजह से. जब बहुत ज़्यादा चेंज डिमांड नहीं होती प्राइस की वजह से तो हम इसको बोलते हैं इनइलास्टिक. तो इन द केस ऑफ नेसेसिटी यू कैन से देयर इज़ अ इनइलास्टिक टाइप ऑफ elasticity of demand. Now next thing is when the commodity is of comfort type, like comfort, today we are using the comfort, so you can easily give the example of comfort like fan, refrigerator, AC. These are the example of comfort. So AC is also coming in the comfort for the medium family during the summer summer days. So chalo fine, fan, refrigerator, these are the television, these are all the comfort today's life. So everybody is having all that. So in this case, in the case of comfort, demand is relatively elastic, because अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज होगी. तो देयर यू कैन से दैट हेयर इट इज़ फाइन, इट इज़ इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब डिमांड प्राइस के हिसाब से रिस्पॉन्स देगी, और इनइलास्टिक का मतलब डिमांड प्राइस के हिसाब से कम रिस्पॉन्स देगी. ठीक है. नेक्स्ट है लग्जरी. दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ द गुड विच इज़ हैविंग द इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्योंकि लग्जरी का मतलब हो गया जैसे AC,
luxurious cars, luxurious apartments. So all these are having the elastic demand. Why elastic demand? Elasticity of demand is elastic. Why? Because when there is a percentage change in price, then it will give more percentage change in demand due to that. So that is, it is known as elastic demand. Next thing is availability of substitute. When the substitutes are available for the same type of good, like if you are talking about suppose beverages, then there are many substitutes available like Pepsi, Coke, and then Dew, you can say, and many more drinks are there. So in this case, when there is more availability of substitute, there the price elasticity of demand is elastic, because when there is a change in the price of the Pepsi, then definitely more response from the side of demand in this case. Like suppose the price of Pepsi rises, then what will happen? Now the demand for another substitute will increases and price rises, then that means more proportionate change in demand. So what will be the response of demand in case of rise in price of Pepsi? When there is a percentage price in rise of Pepsi, then there is a more percentage decrease in demand. So demand definitely give inverse response to the price. So if it is demand is giving the inverse response in higher percentage comparatively price, it is elastic. When demand is giving less response or less percentage change in demand, definitely inverse. If price rise, then demand falls. So then in this case it is inelastic. So more availability of substitute makes the elasticity of demand more elastic, and less substitutes are available. So that means people are nowhere to go. This is the only thing they are to use. When the price decreases, then percentage price and decrease in price, then there will be more percentage increase in demand. In that case, if there are more substitute available over there, and if there are no substitute available, that means demand will be less responsive in case when there are no substitute available in the case of any good. देखो अगर ज़्यादा सब्सिट्यूट अवेलेबल हैं और अब अगर प्राइस के अंदर चेंज आएगा तो ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि पेप्सी जो लोग पी रहे हैं देर आर मैनी पीपल हु आर यूजिंग अदर ड्रिंक्स ऑल्सो. जैसे कोई कोक ले रहा है, कोई ड्यू ले रहा है, कोई सपोज करो मिरिंडा ले रहा है. तो इस तरह से सबके अलग अलग सब्सिट्यूट हैं. तो अगर पेप्सी का प्राइस डाउन हो जाएगा तो बाकी सारे सब्सिट्यूट छोड़ के लोग इस तरफ आएंगे, तो इसकी परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज़्यादा होगा. लेकिन अगर सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो कंपैरेटिवली डिमांड उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देगी जितना वो सब्सिट्यूट की अवेलेबिलिटी पर देती थी, क्योंकि पीपल आर यूजिंग द प्रोडक्ट और नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट. और सिर्फ मेयर डिक्रीज इन प्राइस डज नॉट प्रोवोक द पीपल टू इंक्रीज द डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट. लेकिन अगर सब्सिट्यूट की बात है तो डेफिनेटली द डिमांड विल इंक्रीज बिकॉज पीपल आर यूजिंग इधर दिस और दैट प्रोडक्ट. नाउ इनकम लेवल. नेक्स्ट थिंग इज इनकम लेवल. देखो इनकम लेवल के केस में इफ़ यू आर हायर इनकम लेवल ग्रुप पीपल और लोअर इनकम लेवल ग्रुप पीपल, सो अगर आप हायर इनकम लेवल ग्रुप पीपल दैट मीन्स यू बिलोंग टू रिच सेक्शन. और रिच सेक्शन का क्या बिहेवियर होता है, वो चेंज इन प्राइस से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते. ठीक है, तो उनकी डिमांड कैसी हो जाती है, उनकी डिमांड इन इलास्टिक, उनका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक हो जाता है. क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा घटने वाली नहीं है, बिकॉज दे आर रिच पीपल. प्राइस बहुत ज़्यादा सपोज करो घट जाएगा तो भी उनकी डिमांड बढ़ने वाली नहीं है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑलरेडी वट एवर प्रोडक्ट दे वॉन्ट एंड दे आर यूजिंग दैट, बिकॉज मनी इज़ नॉट अ मैटर फॉर देम. बट इन द केस ऑफ पुअर पीपल दे आर हाईली इफेक्टेड विद द डिमांड विद द चेंज इन प्राइस. पुअर पीपल के केस में क्या होगा कि अगर पुअर पीपल है यानी कि लो इनकम ग्रुप पीपल है, तो क्या होगा, अगर पुअर पीपल के केस में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाएगा तो पुअर पीपल का जो डिमांड होगी वो ज़्यादा प्रोपोर्शन के हिसाब से इंक्रीज़ होगी, क्योंकि बिकॉज दे आर पुअर एंड मनी इज़ वेरी मटीरियल फॉर देम. सो डेफिनेटली हर एक चीज़ के लिए प्राइस कम होगा तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे, ज़्यादा डिमांड बढ़ाएंगे उस चीज़ की. और अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज मनी इज़ मटीरियल फॉर देम. फाइन. नाउ लेवल ऑफ प्राइजेस. लेवल ऑफ प्राइजेस के केस में कि आप किस तरह के गुड्स खरीद रहे हो कि उनके लेवल ऑफ प्राइजेस क्या हैं. अगर आप बात करते हो मैच स्टिक्स की, ब्रेड की, तो दे आर हैविंग अ लो लेवल ऑफ प्राइस. लेकिन अगर आप बात करते हो एसी की, लैपटॉप की, लग्जीरियस वॉचेस की, तो दे आर अ हाई लेवल प्राइस ऑफ. सो हाई लेवल प्राइस और लो लेवल प्राइस का मतलब जनरली जो कम पैसों की आती हैं चीज़ें, जैसे मैच स्टिक हो गया, जैसे आपके पेंसिल पेन, दे आर लो लेवल प्राइस. और जैसे लैपटॉप हो गया, एसी हो गया, लग्जीरियस कार हो गए, तो ये सब दीज आर ऑल द हाई लेवल प्राइसेस. तो अगर आप लो लेवल प्राइस की बात करते हो तो उनकी डिमांड जनरली इनइलास्टिक होती है, क्योंकि जब लो लेवल प्राइस के गुड्स होते हैं, जब उनके प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, और जब उनके प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं घटती. रीज़न क्या कि अगर सपोज़ करो आपको ब्रेड लेने के लिए भेजा और ब्रेड का सपोज़ करो प्राइस इंक्रीज़ हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ इन डिमांड उस केस में नहीं होता. तो प्रोपोर्शनेट डिक्रीज़ इन डिमांड is not much affected in case proportionate increase in price
इन द केस ऑफ लो प्राइस गुड्स. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हाई प्राइस गुड्स, जब आप बहुत महंगे गुड्स की बात करते हो तो उस केस में एसी की बात करते हो आप, अगर सपोज करो हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन टीवी की बात करते हो, ठीक है, लैपटॉप की बात करते हो या फिर और कोई लग्जरियस आइटम की बात करते हो, तो उस केस में अगर प्राइस कम होते हैं तो देयर इज़ ए मोर प्रोपोर्शनेट चेंज, देयर इज़ ए मोर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन डिमांड इन केस ऑफ लग्जरियस गुड्स, और यू कैन से इन केस ऑफ हाई लेवल प्राइस गुड्स. तो हाई लेवल प्राइस गुड्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है, या मैं कहूँगी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक होती है. और लो लेवल प्राइस के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है. ठीक है. नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन. अगर कंज्यूमर पोस्टपोन कर सकता है अपनी कंजम्पशन को फ्यूचर में, सपोज टुडे ही डजंट वांट टू कंज्यूम द गुड्स एंड ही वांट टू पोस्टपोन हिज कंजम्पशन टू द फ्यूचर या टिल द फ्यूचर. तो इन दिस केस his price elasticity of demand, because he can postpone his demand, that will be highly elastic. बिकॉज व्हेन क्यों आप पोस्टपोन कर रहे हो, क्योंकि आज की डेट में प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आप सोचते हो कि मैं आज नहीं, मैं इसको फ्यूचर में कभी ले लूँगा. तो दैट मीन्स यू आर पोस्टपोनिंग, दैट मीन्स योर डिमांड हैज़ बीन डिक्रीज इन मोर प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली प्राइस. तो पोस्टपोन कर सकते हो, तो इस केस में डिमांड कैसी हो जाती है, हाईली इलास्टिक. ठीक. अब अगर हम बात करते हैं कि अगर यू कैन नॉट पोस्टपोन योर डिमांड, लाइक इफ देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस, इवन देन यू कैन नॉट डिक्रीज द डिमांड इन दैट proportion or in more proportion, that means you cannot postpone. So in this case your price elasticity of demand will be you can say inelastic or less than unitary elastic, क्योंकि आप अपनी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते, यानी कि आप अपनी डिमांड को नहीं घटाओगे बहुत ज़्यादा अगर प्राइस बढ़ जाएगा. और पोस्टपोन के केस में आपका प्राइस बढ़ गया, आप अपनी डिमांड को बहुत ज़्यादा कम कर दोगे, बिकॉज यू कैन पोस्टपोन योर डिमांड इन फ्यूचर. तो दैट विल बी हाईली इलास्टिक. ठीक है. हाईली इलास्टिक का मतलब इलास्टिक भी हाईली इलास्टिक को बोलते हैं, इलास्टिक हाईली इलास्टिक एक ही बात है. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ यूजेस. देखो, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूजेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मिल्क है, दे आर हैविंग नंबर ऑफ यूजेस, तो अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है किसी प्रोडक्ट के, तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक हो जाती है, या कह सकते हो इलास्टिक हो जाती है. लेकिन अगर नंबर ऑफ यूजेस कम है तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस इलास्टिक हो जाती है, और आप कह सकते हो इनइलास्टिक हो जाती है. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, मिल्क की. सो दे आर हैविंग नंबर ऑफ यूजेस, सो यू कैन यूज़ द प्रोडक्ट फॉर मैनी, यू कैन यूज़ दैट प्रोडक्ट फॉर मैनी यूजेस. तो इस केस में आप क्या करोगे, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो आप उसके यूजेस कम कर दोगे. फॉर एग्जांपल मिल्क है, so you will use that milk only for drinking. You will not use that milk for you can say curd, making curd, or making cheese or some other product which can be made from milk. And you know that many byproducts of the milk, so you will not make that because the price has been increased. तो आप क्या करोगे, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बिकॉज यू विल यूज़ फॉर द लेस, यू विल यूज़ द सेम प्रोडक्ट फॉर द लेस यूजेस. सो इन दिस केस द डिमांड विल बी मोर इलास्टिक. जब डिमांड प्राइस को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी, कैसा रिस्पॉन्ड कर देना है डिमांड ने प्राइस को, डेफिनेटली इन्वर्स देना है. अगर प्राइस बढ़ जाएगा और डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाएगी तो हम इसको बोलेंगे मोर इलास्टिक. तो मिल्क के केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में आप डिमांड को बहुत ज़्यादा घटा दोगे अगर प्राइस बढ़ जाएगा, तो डिमांड विल बी मोर रिस्पॉन्सिव, जिसकी वजह से आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक. लेकिन अगर किसी चीज़ का एक ही यूज़ है, लाइक सपोज करो फैन है, तो फैन का एक ही यूज़ है कि फ़ैन अगर आपने परचेज़ किया तो बस वो समर में आप उसको चलाओगे और स्विच ऑन द फैन एंड you will have rid of you can say heat, और you can get the relief in the summer season. So in this case अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी डिमांड बहुत ज़्यादा इस केस में रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, क्योंकि फ़ैन का एक ही यूज़ है. ठीक है. यू विल यूज़ दैट फैन ड्यूरिंग द समर सीजन, तो वो उसकी डिमांड पे इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा इस केस में. ठीक है. तो इस केस में अगर नंबर ऑफ़ यूजेस नहीं है प्रोडक्ट के, लाइक टेबल है, चेयर है, इनके नंबर ऑफ़ यूजेस नहीं है ज़्यादा, तो इस केस में अगर इनका प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होती. तो इस केस में डिमांड कैसी हो जाती है, इनइलास्टिक. नाउ द नेक्स्ट है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर. अगर जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर है आउट ऑफ योर इनकम, सपोज योर इनकम इज़ 100 एंड यू आर स्पेंडिंग 60 रुपीज़ आउट ऑफ दैट इनकम, और अब 60 रुपीज़ में से टोटल आप 60 रुपीज़ खर्च करते हो, 60 रुपीज़ में से सपोज करो 30 रुपीज़ आप सपोज करो एक्सपेंडिचर करते हो घर के राशन पर, तो और उसके अलावा आप बाकी छोटे मोटे खर्चे करते हो, बट घर के राशन पर आप 30 रुपीज़ स्पेंड करते हो आउट ऑफ योर से 60 रुपीज़ एक्सपेंडिचर. आधा आप यानी कि हाफ अमाउंट आप खर्च करते हो घर के राशन पर, तो इसका मतलब शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द राशन इज़ मोर. तो जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर के ऊपर ज़्यादा प्रोपोर्शन खर्च होता है एक्सपेंडिचर का, उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो कैसी होती है, दैट इज़ इलास्टिक.
जब आप ज़्यादा किसी चीज़ पर खर्च करते हो तो उसका प्राइस जब इंक्रीज डिक्रीज होता है तो आप बहुत अफेक्ट होते हो। लेकिन जब आप किसी चीज़ पे कम खर्च करते हो, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी पे आप सिर्फ 1% खर्च करते हो अपने टोटल एक्सपेंडिचर का, तो बिकॉज इट इज़ 1%, सो डिक्रीज और इंक्रीज इन प्राइस डज नॉट इफेक्ट द डिमांड मच। लेकिन आप जिस पे 60 में से 30 रुपीज़, जैसे मैंने बताया, राशन पे खर्च करते हो, बहुत ज़्यादा राशन पे खर्च करते हो, तो उस केस में अगर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगा देन डेफिनेटली यू विल बी अफेक्टेड विद द प्राइस एंड योर डिमांड विल बी इंक्रीज और डिक्रीज इन मोर प्रोपोर्शन विद द चेंज इन प्राइस। राइट, डिमांड हमेशा प्राइस को इन्वर्स रिस्पॉन्स ही देती है। ठीक है, बात यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये है कि ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है या कम रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट टाइम पीरियड। तो देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस के अंदर देखो, अगर आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट, आप बहुत ज़्यादा आपके पास है टाइम कि आप उस प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हो या फिर आप उस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम पीरियड लगा सकते हो, तो इस केस के अंदर आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट पीरियड है टू फाइंड आउट दैट प्रोडक्ट, तो उस केस में आपकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उसके लिए और ज़्यादा एफर्ट कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा बार्गेन कर सकते हो उस प्रोडक्ट के लिए। तो अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो यू आर हैविंग मच टाइम टू फाइंड आउट दैट प्रोडक्ट और फॉर दैट प्रोडक्ट, तो उस केस में आपकी जो डिमांड है वो मोर रिस्पॉन्स देगी। प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड आपकी मोर प्रोपोर्शन के हिसाब से डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है देन यू आर नॉट हैविंग मच टाइम टू फाइंड द प्रोडक्ट। इन दिस केस अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो आपकी जो डिमांड है वो उसी प्रोडक्ट के लिए कंपैरेटिवली, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे, यानी कि आपकी डिमांड ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो पाएगी। तो इस केस में टाइम पीरियड के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? अगर शॉर्ट पीरियड है तो इनइलास्टिक, लॉन्ग पीरियड है तो इलास्टिक होती है। नेक्स्ट केस है हैबिट। इफ़ यू आर हैबिचुअल ऑफ समथिंग तो डेफिनेटली प्राइस अफेक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड उसको बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करोगे आप, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, बिकॉज यू आर हैबिचुअल टू दैट। मैनी थिंग यू कैन बी हैबिचुअल टू मैनी थिंग। बहुत सारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो प्राइस बढ़ जाता है तो भी उन्हें को फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर कोई फास्ट फूड के हैबिचुअल हो जाते हैं तो उस केस में प्राइस बढ़ जाता है, इवन देन उनकी डिमांड ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो पाती। तो इस केस में, या आप किसी और चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हो, जैसे इसमें सिगरेट बता रखा है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो हैबिचुअल अगर आप किसी चीज़ के हो जाते हो तो अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो भी डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के हैबिचुअल नहीं हो और उस केस में अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आप उसके हैबिचुअल नहीं हो। यू कैन फाइंड आउट सम सब्स्टिट्यूशन, सम सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो इस केस में अगर आप हैबिचुअल नहीं हो तो आपकी डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है उस केस में। लेकिन अगर आप हैबिचुअल हो तो आपकी डिमांड कम रिस्पॉन्सिव होती है, बिकॉज यू विल परचेज दैट प्रोडक्ट एट एनी प्राइस। ठीक है, तो हैबिचुअल अगर आप हो, हैबिट्स हैं अगर आपके उस प्रोडक्ट के लिए, तो आपकी डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होगी। अगर आप हैबिचुअल नहीं हो तो इलास्टिक होगी। ठीक है, ये हैं आपके सारे फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच यू आर टू डिस्कस इन दिस वे।